will come under the head called reserves and surplus. Okay, then comes bank loan. Bank loan, where it will be shown bank loan. Yes, bank loan. Yeah, it is a long term borrowing. It is a long term borrowing. Then comes advertisement suspense account, where it will be shown advertisement suspense account, other non current assets, other non current assets. Then ICICI loan means it is a bank loan again a bank loan. So same LTB, long term borrowing. Then comes workers accident compensation fund. Special provision is made if any accident is occurred to the employees of the organization. So special funds are created for them, which will be shown in reserves and surplus. Then provision for taxation. Provision for taxation. Tax provision is normally considered as a short-term provision. Short-term provision within a year or yearly basis. Then bills receivable. Bills receivable, it's an asset and it will fall under, where it will be fall? It will be fall in trade receivables. Trade receivables. Then comes creditors. It's very easy. Creditors, they are the person to whom we are supposed to pay, and they are considered as trade payables. Will be shown under the head called trade payables. Then the next point is loose tools. Loose tools. It comes under the category of inventory. They are just considered as stock and will come under the category of inventory. Then the next is debtors. Debtors will be shown in trade receivables. Debtors are the person from whom we are going to receive the money. They are our customers. Motor car, we know very well what is motor car. Sir, it's a tangible asset. Bank overdraft. Now, what is bank overdraft, sir? It's a kind of liability, comes under the category of other current liabilities. Other current liabilities. Machinery. It is an asset, so will be shown under tangible asset head. Stock in trade means stock ultimately will come under the category of inventories. Then investment fluctuation fund. So investment, it's a special kind of reserve which is done for investment purpose, and that will shown under the head called reserves and surplus. Each and every funds will be shown in reserves and surplus, mind you. Instruments. Where instruments will be shown, sir? Instruments will be shown in tangible assets. Instruments may be related with any pattern of instruments depending on the nature of the business. Then comes provident fund. Now आप पीछे फंड देख के ऐसा नहीं करना है कि भाई चलो इसमें भी फंड लिखा है उसमें भी फंड लिखा है तो मैं सर इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा दूं. So it depends which type of fund is there. Provident fund comes under the category of retirement fund. So it's a long term
प्रोविजन, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फंड के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है प्रोविजन। तो ये कहाँ शो करना है हमें सर? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कैश बैलेंस बहुत इजी है सर, CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। देन कम्स लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग where it will be shown, sir, tangible assets. Investments. Investments will be shown as non-current investments. Non-current investments. Then comes unpaid expenses. Unpaid expenses. हमें एक्सपेंसेस पे करने, लेकिन हमने पे किए नहीं है, तो लायबिलिटी हुई पहले, तो ये समझ में आना चाहिए। तो ये कहाँ दिखाया जाएगा सर? इसका रिकॉर्ड कहाँ होगा सर? अदर करंट लायबिलिटीज। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से हमने डिपॉजिट ली है सर, एक तरीके से लायबिलिटी हो गई। जैसे फिक्स डिपॉजिट हम जाके बैंक में रखते हैं, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो कंपनी में जाके डिपॉजिट रखते हैं, मीन्स अपने पैसे कंपनी को देते हैं। तो एक तरीके से कंपनी के लिए फ्यूचर लायबिलिटी हो गई। और इस तरीके से यहाँ से एक तरीके से इट्स अ काइंड ऑफ लोन, यूं समझ लीजिए, जनता से ली गई है, तो इसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंसीडर करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलिए, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट यानी हम डिडक्ट करेंगे, RS का जो टोटल होगा उसमें से ये बैलेंस डिडक्ट होगा। डेबिट बैलेंस इज कंसीडर एज नेगेटिव, मींस लॉस के तौर पे माना जाता है, तो उसको हम डिडक्ट करेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर में सर टेंजिबल एसेट्स, इजी है, ये तो पता है हमें। अदर लोन, अदर लोन और भी अन्य लोन भी ली गई है सर, तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो तो लॉन्ग टर्म में हम वहां दिखाएंगे इसको। अदर लोन्स को हम एक तरीके से अनसिक्योर्ड मान रहे हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इसे हम अनसिक्योर्ड मान रहे हैं, और इसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे। बैड डेट रिजर्व, अब पीछे रिजर्व दिखा तो ऐसा नहीं कि भाई रिजर्व से सरप्लस में दिखा दें, पीछे फंड दिखा तो हम रिजर्व से सरप्लस में दिखा देंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बैड डेट रिजर्व हैज अ रिलेशन विद डेटर्स, ठीक है, तो इसका रिलेशन डेटर्स के साथ होता है, इसे हम डेटर्स के बैलेंस में से डिडक्ट करते हैं, तो इसे हम ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखाएंगे और डेटर्स में से डिडक्ट करेंगे। चलिए, फिर बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल, तो ये जाएगा सर ट्रेड पेएबल्स। हमें बिल्स पे करने बाकी है हमारे, पेएबल है, हम लेटर ऑन पे करेंगे, विल बी शोन अंडर दैट ट्रेड पेएबल। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है जितनी भी एसेट है उसमें से डिडक्ट हो, मीन्स एसेट का हम जो टोटल होगा टोटल लेंगे और उसमें से हम इसको डिडक्ट करते हैं, तो ये जाएगा टेंजिबल एसेट्स के कॉलम में। उसके बाद आता है कैपिटल, नाम से ही हम जानते हैं इसको कहाँ आएगा, हमें पता ही है, शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। यहाँ कैपिटल, यहाँ शेयर कैपिटल, जैसा आप हेड कैपिटल भी चलेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने एलोकेशन करना है हमेशा। एलोकेशन एक बार हो गया फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। एलोकेशन करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए, नाउ बी प्रिपेयर्ड विद द कॉलम्स। अब हम सीधा चलेंगे नोट्स, हमारे नोट्स पे वैल्यूएशन पे चलेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड विद द नोट्स। नोट्स टू द अकाउंट्स। चलिए, सबसे पहली हेडिंग
शेयर कैपिटल, यहाँ कैपिटल यहाँ पे लिख सकते हैं। इस सब में सिर्फ कैपिटल दिया तो कैपिटल हेडिंग भी चलेगी इस सब में। तो कैसे दर्शाएंगे, दो दो कैपिटल है हमारी। चलिए अब मैं पहले स्प्लिट कर लूँ, जस्ट अ मिनट। जी, कैपिटल यहाँ पे पीके लिमिटेड का जो कैपिटल है, दो पार्टनर्स में बटा हुआ, यूं समझ लीजिए दो बंदों में बटा हुआ है पीके। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे एंट्री, दोनों पार्टनर्स की एंट्री साथ में होगी, दोनों होल्डर्स की एंट्री साथ में होगी। कैपिटल्स लिखेंगे, पी का 61,000, के का 41,000 और आउटर कॉलम में टोटल, फाइनल टोटल भी ले लेंगे 1,02,000। इस तरीके से आपका पहला कॉलम रेडी हो जाएगा, पहला नोट्स रेडी हो जाएगा। शेयर कैपिटल टोटल 2,000। चलिए सेकेंड नोट्स पे चलते हैं। सेकेंड नोट्स की हेडिंग होगी सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो पहले हम देख लें रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। चलिए सबसे पहले मुझे दिख रहा है जनरल रिजर्व। चलिए जनरल रिजर्व के बाद नेक्स्ट वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड है, वो ले लेते हैं उसकी एंट्री। चलिए 5,000 वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। उसके बाद इसी लाइन में अगर हम आगे देखेंगे तो हाँ जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आरएस, हमें आरएस ढूंढना है। अब तो हेडिंग हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई क्लासिफाई कर ली है, हमारे लिए अब आसान हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नेक्स्ट हेड। और इसके बाद अब अदर साइड पे एक मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिख रहा है, और ऊपर कोई फंड रिजर्व एंड सरप्लस का नहीं है। चलिए तो अब एक ही चीज बची है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो हम इसको नेगेटिव स्वरूप में लिखेंगे, जो भी बैलेंस है उसमें से डिडक्ट होगा। क्रेडिट होता तो प्लस रहता, डेबिट है तो डिडक्ट करना है। चलिए सो फाइनल टोटल पे चलते हैं। 61 प्लस 5 66, 66 प्लस 11 77, माइनस 9 68,000 आएगा। थर्ड नोट्स पे चलते हैं। नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कौन कौन सी पॉइंट्स है देख लेते हैं। सबसे पहले है बैंक लोन। बैंक लोन है, बैंक लोन की एंट्री लेंगे 15,000। जिसके बाद तुरंत आप नीचे देख सकते हैं आईसीआईसीआई लोन, उसकी एंट्री लेंगे। चलिए आईसीआईसीआई लोन के बाद और कौन कौन सी चीजें थी देख लेते हैं। एक कुछ अधर लोन करके था, हाँ जी ये अधर लोन, जिसे हमने लॉन्ग टर्म कंसीडर किया है एज एन अनसिक्योर्ड लोन। मैंने यहाँ स्पष्ट किया है अनसिक्योर्ड, से हम अनसिक्योर्ड मान रहे हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फॉर द कंपनी। कितना रकम लिया है जनता से, 10,000 की रकम जनता से ली हुई है, फ्यूचर में रिटर्न करनी होगी जब वो मैच्योर होगी। तो 49,000 का टोटल बोरोइंग्स है। आउटसाइड लोगों से हमने कितनी लोन ली है सर, बैंक्स और
बैंक लोन समझ लीजिए एक तरीके से लोन्स लिए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और डिपॉजिट्स पब्लिक से, जनता से ली हुई है। टोटल हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो रही है 49,000। चलिए अगला पॉइंट नील है, हेडिंग अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। नील। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में हमने क्या देखा था, एक ही पॉइंट है, ये रहा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। रिटायरमेंट फंड्स की बात की थी, प्रोविडेंट फंड, इस रिटायरमेंट बेनिफिट एक ही है। मैं सीधा एंट्री करके टोटल ले लूंगा, 7,000 की एंट्री होगी, टोटल भी यही रहेगा। पॉइंट नंबर 6, लेट अस फिक्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इस सम नहीं है, होता तो स्पष्ट बोला जाता दैट दिस इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ज्यादातर स्पष्ट किया जाता है जिससे हमें पता चले ये शॉर्ट टर्म है। नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में क्या आएगा सर? ट्रेड पेएबल में नॉर्मली दो चीजें होती हैं, एक होता है बिल्स पेएबल और एक होता है क्रेडिटर्स। लायबिलिटी सेक्शन आपको देखना होगा। लायबिलिटीज एक हमारा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की एंट्री कर लेते हैं पहले 25,000, और फिर आएगा बिल्स पेएबल 5,000। तो दो चीजें आएगी, दोनों का टोटल मिला के टोटल ट्रेड पेबल्स हो जाएगा 30,000। चलिए अगली हेडिंग, अदर करंट लायबिलिटीज। क्या ऐसी अदर करंट लायबिलिटी? एक मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रही है, और एक और थी, हाँ, अनपेड एक्सपेंसेस। दो एंट्रीज है, तो इन दोनों की एंट्री अब लेंगे। पहला है, हमने लिखा है सर अनपेड एक्सपेंसेस 3,000, और बाद में है बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री 11,000, और टोटल हो जाएगा 3 + 11 14,000 का टोटल। और लायबिलिटी साइड का आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या ऐसी कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? हाँ सर, मुझे याद है प्रोविजन फॉर टैक्स एक पॉइंट था, तो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 5,000 का एक पॉइंट है, वही टोटल। सो लायबिलिटी सेक्शन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हुआ। टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं लायबिलिटी सेक्शन के। अब आगे बढ़ते हैं, एसेट सेक्शन पे चलते हैं। सबसे पहला आता है सर टेंजिबल एसेट्स। The assets which can be seen, touched, feel are called tangible assets। तो वैसे एसेट्स की एंट्री करते हैं, ये ज़्यादातर ज़्यादा होती है तादाद में। एक तरीके से ये मेन एसेट्स होती है कंपनीज की। तो सबसे पहली एंट्री ले लेते हैं, मोटर कार मुझे दिख रही है, तो शायद मोटर कार ही मैंने लिखा होगा सबसे पहले, देख लेते हैं जी। मोटर कार 41,000। फिर मशीनरी दिख रही है मुझे, तो मशीनरी की एंट्री ले लेते हैं 29,000 मशीनरी। और भी बहुत सारी एसेट्स हैं। अगली एसेट लैंड एंड बिल्डिंग 81,000। देन नेक्स्ट इज फर्नीचर। एक फर्नीचर है, एक इंस्ट्रूमेंट्स है,
अगली एंट्री इंस्ट्रूमेंट्स की है, इंस्ट्रूमेंट्स भी है अंदर, यहाँ रहा, ये रहा। इंस्ट्रूमेंट्स के बाद एक और एसेट है हमारा फर्नीचर। तो ये सारे एसेट्स आ चुके हैं, इनका टोटल ले लेना है आपने पहले। इन सब एसेट का, 5 एसेट का टोटल 1,89,000 होना चाहिए। और इस सम में आपको डेप्रीशिएशन अमाउंट दी हुई है, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, जो हम इस रकम में से डिडक्ट करेंगे। सो डेप्रीशिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट। कितना डेप्रीशिएशन है सर? 31,000। फाइनल टोटल पे चलते हैं, 189 माइनस 31 विल गिव अस 1,58,000। तो इस तरीके से अगर डेप्रीशिएशन दिया है, ये तो फिक्स एसेट, सारे फिक्स एसेट्स मान के हम चल रहे हैं एक तरीके से, यानी कॉमन ले ले रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एसेट का नाम नहीं दिया कि भाई मशीनरी में से डिडक्ट करना है या लैंड एंड बिल्डिंग में से डिडक्ट करना है। अगर मान लीजिए मशीनरी बोला होता कि भाई डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000, तो यहाँ मशीनरी लिखते, यहाँ 29,000 लिखते, लेस जो भी डेप्रिसिएशन होता मशीनरी पे वो माइनस करके आउटर कॉलम में। लेकिन यहाँ फिक्स एसेट्स दिया होगा, इसलिए यहाँ पे लास्ट में हम डिडक्ट कर रहे हैं इस तरह सेपरेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, इनटेंजिबल एसेट्स जो इस सम में नहीं है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस सम में नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, 12 नंबर पे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट देख लेते हैं कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट है। हाँ सर है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट भी कह सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म मान रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के कॉलम में हम इसको दर्शा रहे हैं। 41,000 टोटल भी वही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नील, देयर इज नो एंट्री रिलेटेड विद दिस हेडिंग। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट्स, जिसका पूरा नाम है अदर नॉन करंट एसेट्स। ऐसी एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके इंफॉर्मेशन थी, ये रही मुझे याद है, तो वो एक एंट्री यहाँ पे होगी और टोटल वही रहेगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5,800, टोटल वही। चलिए नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 15, करंट इन्वेस्टमेंट। कोई भी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है इस सब में, इसलिए नील। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज में नॉर्मली हम स्टॉक से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन की एंट्री करते हैं। तो चलिए स्टॉक से जुड़ी हुई एंट्रीज लेते हैं। पहला खुद स्टॉक इन ट्रेड है, आपको याद ही होगा, स्टॉक इन ट्रेड जी 11,200 का स्टॉक इन ट्रेड है। और क्या था देख लेते हैं, और कुछ लूज टूल्स, इट इज कंसिडर एज एन इन्वेंटरी, तो ये लूज टूल्स की एंट्री होगी, और टोटल हो जाएगा 19,200 इन्वेंटरी का। चलिए 17 नंबर की हेडिंग ले लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में देख लेते हैं, एक होता है डेटर और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। तो पहले हम बिल्स रिसीवेबल की एंट्री ले लेते हैं। ये रहा बिल्स रिसीवेबल 11,000, जिसकी एंट्री हो गई। फिर आएगा डेटर्स, डेटर्स लेस बीडीआर करके आपने यहाँ पे वैल्यूएशन करना है, खास ध्यान रखिए। डेटर्स 29,000 है, लेस बेड डेप रिजर्व 2,000, यानी यहाँ पे थोड़ी मेरी वैल्यूएशन में मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट। 29 माइनस 2, तो 27,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अमाउंट चेंज करनी होगी, ध्यान रखिएगा। 29,000 माइनस 2,000,
जो डेटर्स है उसमें से बैड डेट रिजर्व्स जो है वो डिडक्ट होते हैं, और डिडक्ट होने के बाद जो वैल्यूएशन हो रही है 29,000 माइनस 2,000। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिससे आपको इजी लगेगा। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इससे आपको याद रहेगा भाई ये 27 यहाँ पर 29 दिया, 27 कैसे लिख दिया सर, यहाँ लिखा हुआ है डेटर्स लेस BDR। सो हमारे टोटल जो हमें मिलने वाले हैं वो 29 नहीं मिलेंगे, कस्टमर से मिलेंगे 27। तो यहाँ टोटल चेंज होगा 38,000। पॉइंट नंबर 18 पे चलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का वैल्यूएशन में एक ही चीज है कैश से जुड़ी हुई, खुद कैश बैलेंस दिया हुआ है आपने, आपको पता ही है 12,000। अगले दो 18 और सॉरी 19 20 में कोई एंट्रीज नहीं है, वो रहेगा नहीं। सो इस तरीके से हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स की टोटल वर्किंग नोट्स रेडी हो चुकी है। ये कैलकुलेशन दिखाना कंपलसरी है, आपको एग्जाम में इस तरीके से वैल्यूएशन करना है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर, फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका रेडी होना चाहिए। चलते हैं एंट्रीज पे। कैसे बैलेंस शीट बनानी है सर, हेडिंग दे देनी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। जिस किसी कंपनी की है उस कंपनी का नाम भी पीछे से ऐड कर सकते हैं, ऑफ जो भी नाम है ऑफ पीके लिमिटेड। चलिए सबसे पहली हेडिंग क्या होगी सर, शेयर होल्डर्स फंड। अब हम देख लेते हैं कितने फंड्स हैं शेयर होल्डर, यानी पहले पॉइंट में कैपिटल आता है, और कितना कैपिटल है और कितना रिजर्व है, इन दोनों की एंट्री ले लेते हैं। नोट 1 और नोट 2 की एंट्री, नोट 1 में आएगा शेयर कैपिटल, या यहाँ पे आप कैपिटल भी लिखेंगे तो चलेगा। इस सम के अंदर नोट 1 1,02,000 है, हमने कैलकुलेट किया है, टैली भी कर रहे हैं कि कहीं एरर ना हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा 68,000 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिसकी कोई एंट्री नहीं है, यानी कोई रकम नहीं है, इस समय नहीं दी हुई है। नॉर्मली ये आपको एग्जाम्स में ये रकम नहीं दी जाती है, इससे जुड़ी रकम नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती। बाई चांस अगर दे दे तो एक सिंगल अमाउंट होगी जो आपको सामने दी होगी, डायरेक्ट लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सब पॉइंट नंबर 3, अगली हेडिंग होगी नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज में पहला पॉइंट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 हमारा आ रहा है 49,000, उसकी एंट्री करें। फिर आएगा नोट नंबर 4 जो नील है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारा 7,000, नोट नंबर 5। देन यहाँ पे हमारा नॉन करंट लायबिलिटी कंप्लीट। हेडिंग 4 पे चलते हैं, मेन हेडिंग 4। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जितनी भी चीज़ें थी वो हमारी कंप्लीट हुई, बोरोइंग्स, देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज में, जिसमें हम शॉर्ट टर्म की बातें करते हैं। अब शॉर्ट टर्म की पॉइंट्स की एंट्री करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पॉइंट नंबर 6, ऐसी कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग इस समय नहीं है, तो आंसर रहेगा नील। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स का वैल्यूएशन हमने किया था और आ रहा है 30,000, नोट नंबर 7। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एंट्री है अदर करंट लायबिलिटीज।
एज पर नोट नंबर 8 और टोटल आना चाहिए इसका, लिखना है आपको 14,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी है एक, टैक्स का प्रोविजन, और वो है 5,000। तो इस तरीके से आपका लायबिलिटी सेक्शन कंप्लीट हुआ। एंड इस सेक्शन का टोटल 2,75,000 आ रहा है। फिर चलेंगे अगले सेक्शन के पास, एसेट्स। चलिए एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आएगा फिक्स एसेट्स। फॉर्मेट याद रखना है आपने, सबसे पहले नॉन करंट एसेट, उसके अंदर फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट में पहला आता है टेंजिबल एसेट और दूसरा आता है इंटेंजिबल एसेट। सो टेंजिबल और इंटेंजिबल की बात होती है फिक्स एसेट्स के अंदर। तो टेंजिबल हमने कैलकुलेट किया था कुछ 1,58,000 है, यहाँ नीचे टोटल है हमारे पास। और इनटेंजिबल इस सब में नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, कोई वैल्यूएशन नहीं दिया है, कोई पॉइंट नहीं दिया। चलते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट ए फिक्स एसेट्स कंप्लीट, उसी में अब नॉन करंट एसेट में अगला पॉइंट बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई एंट्री, एक ही है 41,000। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो नील है। आगे बढ़ते हैं, अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स 5,800। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट हुए, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट, ये सब लॉन्ग टर्म स्वरूप के हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म के पास, जिसमें हेडिंग होगी नॉन करंट एसेट के बाद क्या होगा सर, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले होगा करंट इन्वेस्टमेंट, जो पॉइंट नंबर 15 यानी कि नोट नंबर 15 नील है। अब चलते हैं 16 यानी कि इन्वेंटरीज देखते हैं, टोटल है 19,200। सो इन्वेंटरीज ले लेते हैं 19,200। देन अगला पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल, नोट नंबर 17 39,000। यहाँ चेंज करना होगा, हमारी एरर थी 1,000 की, 38,000 कर दीजिएगा। चलिए सो 18 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, सिर्फ कैश बैलेंस दिए हमें, तो वो 12,000 यहाँ पे, और अगली दो में कुछ भी नहीं है। अब आपको चेक करना होगा कि टोटल कितना आ रहा है। 2,75,000 टोटल क्या एसेट साइड का भी आ रहा है? चेक करके मुझे बताइए, कुछ एरर हो तो चैट बॉक्स में टाइप करिएगा टोटल में। If there is any error in the total, type it in the chat box.